ایک غریب لڑکا تھا، نام تھا اس کا عثمان۔ وہ نہ صرف دل کا صاف تھا بلکہ بے حد خوبصورت بھی تھا۔ وہ ایک ویران اور پرسرار محل میں اکیلا کام کرتا تھا۔ اسی محل میں ایک جنی صدیوں سے کسی خوبصورت لڑکے کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ جب اس جنی نے عثمان کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر دیوانی ہو گئی۔ اس نے عثمان کو دولت، شان اور شوکت اور آسائشوں کا لالچ دیا اور آہستہ آہستہ اسے اپنی محبت کے جال میں جکڑ لیا۔ مگر پھر جو کچھ اس معصوم عثمان کے ساتھ ہوا وہ اتنا ہولناک تھا کہ دیکھ کر کسی کی بھی روح کانپ جائے۔ شام گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں مٹی کے راستوں پر کچی جھونپڑیاں بکھری ہوئی تھیں، ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا عثمان۔ عثمان نہ صرف دل کا صاف تھا بلکہ دیکھنے میں بھی بے حد خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ گاؤں والے اسے چاند کا ٹکڑا کہتے۔ مگر عثمان کی زندگی کوئی راجکمار کی سی نہیں تھی۔ اس کا باپ برسوں پہلے فوت ہو چکا تھا اور ماں زینب بی بی ایک چھوٹی سی دکان سے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی تھی۔ عثمان دن بھر گاؤں کے بازار میں مزدوری کرتا، کبھی دکانداروں کے لیے سامان اٹھاتا تو کبھی گھروں میں مرمت کا کام کرتا۔ اس کے ہاتھ محنت سے سخت تھے مگر دل نرم اور ایمان سے بھرپور تھا۔ ہر صبح فجر کی اذان کے ساتھ عثمان اٹھتا، اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اس کی دعاؤں میں ایک ہی التجا ہوتی: اے اللہ، میری ماں کو صحت دے، ہمارے لیے حلال رزق کا بندوبست کر اور ہمیں تیری راہ سے نہ ہٹنے دے۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ گاؤں والے کہتے اس لڑکے کے دل میں اللہ کا نور بسا ہے۔ مگر حالات نے عثمان کو کبھی چین نہ لینے دیا۔ ماں کی دکان پر گاہک کم آتے اور گھر کی چھت تپکتی رہتی۔ کئی راتیں ایسی گزریں جب ماں بیٹے نے خالی پیٹ سونا سیکھ لیا۔ پھر بھی عثمان نے اپنے رب سے شکوہ نہ کیا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے غلط راستوں کی طرف بلایا، کچھ نے دولت مندوں کے گھر نوکری کی پیشکش کی، مگر عثمان کا جواب وہی تھا: میرا رب بہتر جانتا ہے، میں اپنا صبر اور ایمان نہیں بیچ سکتا۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ جنگل کے کنارے ایک ویران اور پراسرار محل ہے جسے شہزادہ محل کہتے ہیں۔ یہ محل برسوں سے خالی پڑا ہے اور اس کے مالک شہر میں رہتے ہیں۔ وہاں کام کرنے والوں کو اچھا معاوضہ ملتا ہے مگر کوئی زیادہ دن تکتا نہیں۔ کہتے ہیں کہ محل میں کوئی شیطانی طاقت بستی ہے۔ عثمان نے ماں کی آنکھوں میں جھانکا جہاں کمزوری اور بے بسی چھپی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر محل میں شیطان بھی ہو تو وہ اللہ کے نام اور قرآن کی آیات کے ساتھ جائے گا۔ اس نے ماں سے اجازت لی، ایک چھوٹا سا قرآن پاک اور 2 روٹیاں جھولی میں ڈالی اور اس راہ پر چل پڑا جہاں اس کے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش منتظر تھی۔ اسی محل میں ایک جنی جو صدیوں سے کسی خوبصورت لڑکے کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، جب اس جنی نے عثمان کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی۔ اس نے عثمان کو دولت، شان و شوکت اور جادوئی جہان کا لالچ دیا اور دھیرے دھیرے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ مگر جو کچھ اس معصوم عثمان کے ساتھ ہوا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اسے دیکھ کر انسان کی روح تک کانپ جائے۔ شہزادہ محل کبھی نواب شہزاد علی کی عظیم رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ محل اپنے عروج پر گاؤں کی سب سے شاندار عمارت تھا۔ اس کے سنگ مرمر کے ستون، رنگین شیشوں کی کھڑکیاں اور فواروں سے سجا باغ ہر کسی کو حیران کر دیتا تھا۔ نواب شہزاد ایک نیک دل انسان تھے، مگر ان کی ایک بیٹی تھی عائشہ، جو اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے مغرور مزاج کے لیے بھی مشہور تھی۔ عائشہ کی شادی ایک غریب مگر نیک دل لڑکے سے طے ہوئی تھی جسے وہ قبول نہ کر سکی۔ ایک رات غصے اور ناپسندیدگی میں عائشہ نے محل کے سب سے بلند کمرے میں خود کو بند کر لیا اور صبح اس کی لاش ایک رسی سے لٹکی ہوئی ملی۔ اس کے چہرے پر غصے اور نفرت کی جھریاں تھیں، جیسے سابے دونوں کے۔ وہ مرنے کے بعد بھی کسی سے بدلہ مانگ رہی ہو۔ اس واقعے کے بعد محل میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ نوکر غائب ہونے لگے، کچھ پاگل پن کا شکار ہوئے اور کچھ جنگلوں میں بھٹکتے پائے گئے۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ عائشہ کی بد دعا اور اس کی نفرت نے محل کو لعنتی بنا دیا۔ کچھ کہتے کہ وہاں ایک جنی رہتی ہے جو ہر خوبصورت انسان کو اپنی گرفت میں لینا چاہتی ہے۔ رات کے وقت محل سے عورت کی سسکیوں کی آوازیں آتیں اور کبھی کبھار
चांदनी रातों में एक सफेद लिबास वाली औरत को खिड़कियों पर देखा जाता। गांव के बच्चे महल के करीब जाने से डरते और बड़े लोग दुआएं पढ़ते हुए दूर से गुजरते। उस्मान ने ये सब कहानियां सुनी, मगर उसका दिल अल्लाह पर यकीन से भरा था। इस यकीन के साथ वो शहजादा महल के भारी दरवाजों से अंदर दाखिल हुआ, जहां दीवारों की दरारों में वक्त और आयशा की नफरत की गूंज छुपी हुई थी। शहजादा महल की दीवारों में बसने वाली वो राजदार कोई आम जिन्नी नहीं थी। उसका नाम था ज़हरा, एक ऐसी जिन्नी जो कभी अल्लाह की इबादत में रात दिन मसरूफ रहती थी। इसकी रूह पाकीज़ा थी और वो जिन्नों की इस जमात का हिस्सा थी जो अल्लाह की रहमत के करीब थे। मगर सदियों पहले ज़हरा को एक इम्तिहान ने तोड़ दिया। उसे एक इंसान से मोहब्बत हो गई, एक ऐसा लड़का जो उसकी रूह को अपनी नेकी और पाकीज़गी से जकड़ लिया था। मगर वो इंसान इससे बेखबर अपनी जिंदगी में मगन रहा। जब इसकी शादी किसी और से हुई तो ज़हरा ने अपने रब से शिकवा किया, तूने मेरे दिल में मोहब्बत क्यों रखी अगर वो मेरा ना हो सका। ये शिकवा उसे जन्नत के करीब से निकालकर शहवानी ख्वाहिशात की दलदल में ले आया। वो शहजादा महल में जा बसी, जहां आयशा की नफरत और बद्दुआ ने पहले ही एक तारीक ताकत को जन्म दिया था। ज़हरा सदियों तक तन्हा भटकती रही, अपनी मोहब्बत के जख्म को सीने में छुपाए। जब उस्मान महल में दाखिल हुआ तो उसकी पाकीज़ा आवाज़, उसकी तलावत और उसका सब्र ज़हरा के लिए एक नई रोशनी बनकर सामने आया। वो छुपकर उस्मान को देखती जब वो अपनी माँ के लिए दुआएं मांगता, जब वो महल की सफाई करते हुए कुरान की आयत पढ़ता और जब वो रात को तन्हाई में अपने रब से बातें करता। ज़हरा के लिए ये कोई आम लड़का नहीं था। उसकी मोहब्बत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी थी, जो उसके दिल के इस खला को भर रही थी जो सदियों से खाली था। मगर एक जिन्नी की इंसान से मोहब्बत, वो भी अल्लाह के एक सच्चे बंदे से, क्या ये मोहब्बत पाक थी या एक गुनाह की इब्तदा? ज़हरा खुद इस कश्मकश में गिरफ्तार थी, मगर वो इस बार उस्मान को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार थी, न कि उस्मान के लिए बल्कि अपनी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए। उस्मान को महल में काम करते चंद दिन ही गुजरे थे कि ज़हरा की दीवानगी बढ़ने लगी। वो हर वक्त उस्मान के करीब रहती मगर कभी नजर ना आती। उसका तरीका अजीब था। वो उस्मान को डराना नहीं चाहती थी बल्कि उसे लालच और राहत के जरिए अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। एक रात जब उस्मान अपनी माँ की दवाई के लिए परेशान था, महल के एक कमरे में एक अलमारी खुद ब खुद खुली और उससे एक चमकदार थैला जमीन पर गिरा। में सोने के सिक्के थे। उस्मान चौंक पड़ा। उसे यकीन था कि ये कोई इंसानी अमल न हो। उसने फौरन कुरान की तलावत शुरू कर दी, सूरे फलक और सूरे नास पढ़ी और हाथ उठाकर दुआ मांगी, ए रब, मुझे तेरी पनाह मांगनी है, किसी जिन्नी या शैतानी ताकत से नहीं। इसी रात उसे ख्वाब में एक नरम आवाज आई, उस्मान, ये सब तेरे लिए है। तेरी माँ की बीमारी दूर हो जाएगी, तेरा घर दौलत से भर जाएगा, बस मेरी मोहब्बत कबूल कर। उस्मान की आंख खुली। उसने फौरन सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, तेरी दी हुई हिम्मत और ईमान ही मेरी दौलत है। मुझे किसी जिन्नी की मोहब्बत या दौलत की जरूरत नहीं। अगले दिन महल में अजीब तब्दीली आई। कमरों में रेशमी पर्दे, मेज पर फूलों के गुलदान और उस्मान की माँ की दवाइयाँ खुद ब खुद नमूदार हो गईं। उस्मान ने सब कुछ एक तरफ रखा, सूरह बकरा की तलावत की और बुलंद आवाज में कहा, अगर ये सब किसी जिन्नी या मखलूक की तरफ से है तो सुन लो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किसी और का नहीं। ज़हरा पहली बार किसी इंसान के इस सब्र और ईमान से हैरान हुई। उसे उस्मान की बातों से तकलीफ हुई, मगर इसके दिल में एक अजीब सी कशिश भी बढ़ रही थी। वो उस्मान की दिलेरी और अल्लाह पर यकीन से मुतासिर हुई, मगर इसकी मोहब्बत अब जुनून की शक्ल इख्तियार कर रही थी। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग हाफिज अब्दुल्ला, जो गांव की मस्जिद के पास बैठकर तलावत और जिक्र किया करते थे, महल पहुंचे। उनकी उम्र 70 बरस थी, मगर उनकी उम्र कम। आंखों में ईमान की रोशनी और दिल में अल्लाह का खौफ था। उस्मान ने उन्हें सारी बात बताई, सोने के सिक्के, ख्वाब में आवाज और महल की अजीब तब्दीलियां। हाफिज अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा उस्मान, तो एक ऐसी आजमाइश से गुजर रहा है जो हर मोमिन के ईमान को परखती है। याद रख, अल्लाह पर भरोसा करने वाले के लिए अल्लाह ही काफी है। उन्होंने उस्मान को सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी पढ़ने की तलकीन की। उन्होंने एक तस्बीह उस्मान को दी और कहा,
जब भी तुझे डर या लालच महसूस हो 33 बार या हफीज और 33 बार या मुतकब्बिर पढ़, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। उस्मान ने पूछा, हाफिज साहब, क्या जिन्नी वाकई इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है? हाफिज अब्दुल्ला मुस्कराए और बोले, कुरान पाक में सूरह अल जिन इस बात की गवाही देता है कि जिन्नों का वजूद है, मगर जो जिन शैतान की राह पर होते हैं वो इंसानों को वसवसों और धोखे से बहकाते हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र उन्हें बेअसर कर देता है। हाफिज अब्दुल्ला ने महल के हर कमरे में सूरह बकरा और आयतुल कुर्सी की तलावत की। उन्होंने एक शीशी में पानी पर सूरह फातिहा और सूरह इखलास 41 बार पढ़कर फूंका और उस्मान को दिया कि उसे हर कमरे में छिड़क दे। ज़हरा, जो दीवारों के पीछे से ये सब देख रही थी, पहली बार खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। से एहसास हुआ कि उस्मान के ईमान और हाफिज अब्दुल्ला की दुआओं के सामने उसकी ताकत मांद पड़ रही है। दूर गांव की एक झोपड़ी में ज़ैनब बीबी हर रात सजदों में रोती और अपने बेटे की हिफाजत मांगती। वो कहती, ए रब, मेरा उस्मान तेरी राह पर है, उसे किसी जिन्नी या शैतानी ताकत से बचा। एक रात जब उस्मान महल में तिलावत कर रहा था, ज़हरा को एक अजीब रोशनी ने घेर लिया। ये ज़ैनब बीबी की दुआओं की रोशनी थी जो आसमानों को चीरती हुई उस्मान तक पहुंची। ज़हरा ने पहली बार खुद को शिकस्त खुर्दा महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उस्मान की हिफाजत उसकी माँ की दुआओं और उसके अपने ईमान में है। ज़हरा की मोहब्बत अब जुनून बन चुकी थी। वो उस्मान को पाने के लिए हर हरबा आजमाना चाहती थी, मगर उस्मान का ईमान और ज़ैनब बीबी की दुआएं उसके आगे दीवार बन गईं। एक रात जब उस्मान महल के सबसे बुलंद कमरे में तिलावत कर रहा था, ज़हरा उसके सामने नमूदार हुई। उसका चेहरा खूबसूरत मगर गमगीन था। उसने कहा, उस्मान, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, क्या तू मुझे कबूल नहीं कर सकता? उस्मान ने नरमी से कहा, ज़हरा, मेरी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए है। तेरी मोहब्बत अगर सच्ची है तो उसे अल्लाह की रज़ा में ढूंढ। ये सुनकर ज़हरा की आंखों से आंसू निकले। उसने कहा, मैंने सदियों तक तन्हाई बर्दाश्त की, मगर तेरे ईमान ने मुझे सिखाया कि सच्ची मोहब्बत अल्लाह से होती है। उसने उस्मान से माफी मांगी और महल से गायब हो गई। उस्मान वापस गांव लौट आया। ज़ैनब बीबी की सेहत में बेहतरी आई और उस्मान की मेहनत से उनका घर खुशहाल हो गया। शहजादा महल अब एक आम महल बन चुका था, जहां अब न कोई सिस्कियां थी, न कोई सफेद लिबास वाली औरत। उस्मान का ईमान और उसकी माँ की दुआओं ने न सिर्फ ज़हरा को शिकस्त दी, बल्कि उसे अल्लाह की तरफ लौटने की राह भी दिखाई। ये कहानी उस्मान की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने ईमान और सब्र के साथ हर आजमाइश का मुकाबला करता है। अल्लाह पर यकीन और माँ की दुआ वो ताकत है जो जिन्नों, शैतानों और हर मुश्किल से बचाती है। अगर उस्मान की ईमान अफरोज कहानी पसंद आई तो वीडियो को फौरन लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।